Hello student, I am your social science teacher Jigar Prajapati from SP Genesis School. As we discussed in ninth standard chapter 8 Constitution, framing of Constitution and its feature, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, वो लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिया. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, पिलर ऑफ प्रीएम्बल. There is the 3 main pillar of preamble: the democracy, socialism and secularism. Now the first pillar is the democracy, but before that we have to understand the words like sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality. ये सारे वर्ड्स प्रीएम्बल में हमने देखे थे, उसका मतलब भी हमने समझा था. Now let's come to the point about democracy. What is democracy? The first of all we understand about the democracy. Democracy, the word is derived from Greek word demos, means the people, and kratos means the power. That means democracy is the country's power is not within a group of people, instead it is with the group of people, but is the people of countries. Means कंट्री का जो पावर होगा वो किसी एक ग्रुप के पास नहीं होगा, किसी इंसान के ग्रुप यानी कि एक राजा या फिर उसकी फैमिली के इर्द गिर्द नहीं होगा, बट पूरे कंट्रीज़ के लोगों के पास होगा. Democratic state administration is such as the arrangement in which there is equal justice for people to social, economical and political and having equal rights to participation. हर इंसान जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबल है उसको कंट्री की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट्स है. In democratic India, people elect their leaders through their choice by the casting vote to represent those leaders in the parliament and thereafter assuming the post of the prime minister and his her cabinet. हम हमारे बिहाफ पे इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है, कैबिनेट बनता है. मीन्स दे डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स. They have to work by the people for the people. That means they have the specific tenors like 5 years or 6 years. They are given the specific time limit. Similarly, the voter elects state and local government also. सेंट्रल लेवल पे होता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे लाइक महानगर पालिका से ग्राम पंचायत में भी होता है. Hence, democracy means by the people, for the people and of the people. डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का साम्राज्य, लोगों का राज्य. कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज द रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. Any citizen of India who possess required constitutional eligibility can contest the elections. Ministerial positions are not acquired hereditary. Hereditary means this वारसागत. प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो वारसागत नहीं होती है, इलेक्शन के थ्रू होती है. Each elected government has a 5 year of tenure. 5 साल का टेनर होता है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. This government works under the principle of constitution and therefore it is known as the responsible government. ये जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है. गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं. आपको यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल से लेकर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तक का पूरा डेफिनेशन याद रखना है. The democratic government is based on the liberty, equality and the feeling of fraternity of continuous work to achieve this goal. The constitution disseminates the power of people to cast their votes according to their free will and thereby instill confidence in their constitution. That means जो गवर्नमेंट होगी वो किसके बेस पे काम करेगी, तो समानता, भाईचारा और उसकी फीलिंग पे, लिबर्टी की फीलिंग पे काम करेगी और उसको बनाए रखने की कोशिश करेगी. अदरवाइज क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे जाएगी और लोग उनको चेंज कर देंगे 5 साल बाद. नाउ आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडिया रेंडर द फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शंस, Parliament, member of assembly, independent and impartial justice and the election commissions are those provisions which make our country democratic in every means. कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया है, तो एज वी डिस्कस कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है फॉर द पॉलिटिकल व्यूज़, पार्लियामेंट के बारे में दिया है कि पार्लियामेंट क्या है, वहाँ पे मेंबर ऑफ असेंबली कितने होंगे वो सब बताया है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में, इम्पार्शियल जस्टिस, उन सब के बारे में रूल्स वगैरह दिया हुआ है. एडल्ट सफरेज एज मीन्स, प्लीज़ इससे खास याद रखना, द क्वेश्चन इज व्हाट इज एडल्ट सफरेज एज.
The adult suffrage age means the citizens who above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education and the income or the birthplace. 18 साल से ऊपर का हर इंडियन सिटीजन अपने लीडर्स को इलेक्ट करेगा, वोट करेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, लाइक कास्ट, जाति, धर्म, पैसा, भाषा, बर्थ प्लेस यानी कि जन्म, इनकम, उन सब के बेस पे. बट इट इज़ द एसेंशियल दैट द सिटीजन्स आर एनलिस्टेड इन द इलेक्ट्रल लिस्ट. फॉर दैट आपका इलेक्ट्रल लिस्ट जो होता है उसके अंदर नाम होना बहुत ज़रूरी है. तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक वाला पॉइंट. नाउ वी डिस्कस आर सेकंड पॉइंट, socialism. In the year 1976, by the 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. As we know कि इंडिया कंट्री कैसा है, सोशल कंट्री है, यहाँ पे लोग सोशली बहुत होते हैं, ठीक है, सोशल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया एट द टाइम ऑफ 42nd Amendment. The Constitution of India directly or indirectly show the social revolution, which brought the social and economical equality and the furtherance the aim of the welfare state. क्योंकि यहाँ पे किसी एक इंसान का आप विकास नहीं कर सकते, आपको पूरे समाज का विकास करना, पूरे समाज को वेलफेयर करना होता है, इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया. The principle of socialist pattern directs social, economical and political equality for citizen as given in the preamble. preamble में सारा चीज़ दिया है, हमने पढ़ा है. It is now regarded as a prime features of the state. Socialist जो वर्ड है वो प्राइम फीचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट के लिए. It's reflect that the India is committed to the social, secure social, economical and political justice. इंडियन लोगों का सोशली यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे सिक्योरिटी होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए. इंडिया स्टैंड्स फॉर द एबोलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लोटेशन as well as for the securing equitable distributions of income, equal distribution हो income का, resources का, wealth का. Any one particular person should not have power over all the assets. Instead, everyone should have equal opportunities. दुनिया की जितनी भी संपत्ति है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, हम सबका है. लाइक बस स्टॉप वगैरह है, इक्वल है हमारा. By getting facilities and the provisions from the societies and thereby the eliminating the discrimination of rich and poor. Therefore, we can say that the Constitution of India is the socialist document. Rich, poor कोई भी हो, उन सबका इक्वल राइट्स होता है, इसलिए हम इसको सोशल डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं. ना हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, इस टॉपिक का, कि भी हमारा टॉपिक था पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल, तो उसका लास्ट टॉपिक है द सेक्युलरिज्म. ये भी 1976 के 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ, जिसका मेन मीनिंग था कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका ये वर्ड यूज़ किया गया कि सर्वधर्म संभाव में हम लोग मानते हैं या फिर सर्वधर्म समदृष्टि में मानते हैं. दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी हैव टू गिव द प्राइड टू देयर अदर रिलीजियस एंड ऑल्सो आर रिलीजियस, ठीक है. द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन्स ऑन द बेस ऑफ रिलीजियस. तो भाई तो इस जाति का है तो उस जाति का है, उसके बेस पे हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. एवरीवन हैज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द जॉब, इन द पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है. सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड द मैंडेटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलरिज्म मैंडेटरी एंड बेसिक फाउंडेशन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. थैंक यू.